Student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your English grammar book and open your chapter number 16. Student, chapter 16, continuous tenses, present, past and future. Students, आज हम continuous tenses के बारे में पढ़ेंगे. Present, past and future continuous tenses. Firstly, present continuous tenses. What is the present continuous tense? The present continuous tense tells us about action that are happening at the time of speaking. Present continuous tense जो है वो बताते हैं कि एक्शन जो है वो स्पीकिंग के टाइम पर हुआ है. We use is MR plus present participle to express this tense. और इसमें हम present participle के साथ is MR का यूज करते हैं. We use the present continuous tense to talk about. और हम किस किस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं कि जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं. द एक्टिविटी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. वो एक्टिविटी जो स्पीकिंग के मोमेंट पर हो तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होंगे. दैट इज आई एम जस्ट लीविंग वर्क. आई विल बी होम इन एन आवर. प्लीज बी क्वाइट. द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग. सो इट्स present continuous tense. Okay students. And second, the temporary situation. कुछ temporary situation में present continuous tense आते हैं, जैसे she is staying at the Royal Hotel. Akshay is doing a course in computer application. And third point, the planned future events. जब हम कुछ प्लान करते हैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही आएंगे, जैसे वी आर गोइंग टू अलेक्सा नेक्स्ट मंथ. आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए जो है वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प से वो कंप्लीट करनी है. कुछ वर्ब्स आपको दिए गए हैं ब्रैकेट्स में. नंबर 1, माई सिस्टर एंड आई डैश टेलीविजन इन आवर बेडरूम. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ करेक्ट वे इज माई सिस्टर एंड आई आर वॉचिंग टेलीविजन इन आवर बेडरूम. क्योंकि यहाँ पर माई सिस्टर एंड आई यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, और जो वर्ब दी गई है वो उसमें आप आईएनजी का यूज करेंगे. सेकंड, द ट्रेन लीव इन 10 मिनट्स. द ट्रेन इज लीविंग इन 10 मिनट्स. दे आर coming with us to the museum. We are painting some pictures for Aunt Susan. The boys and girls are dancing in the hall. And the cat is chasing some birds. Catching some birds. My brother is kicking me. We are going to the zoo tomorrow. He is mending my bike in the garage. I am helping mom in the kitchen. Students, exercise B. Complete the sentence using the simple present or the present continuous form of the verb given below. कुछ यहाँ पर आपको वर्ब्स दी गई हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में एंड सिंपल प्रेजेंट में. आपको वो सेंटेंस में यूज करके कंप्लीट करना है. जैसे वी आर साइकिलिंग टू द केव्स दिस वीकेंड. द शर्ट feels tight and uncomfortable. The vegetable sizzle on the barbecue grill should be ready to eat very soon. Technology is changing our lives so fast that some people are unable to cope. So students, इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है. सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. The past continuous tense tells us about action that were going on at a certain time in the past. Past continuous tense जो है वो बताते हैं कि एक्शन जो है किसी समय में कंप्लीट हो चुका है, किसी सर्टेन टाइम में वो जो है वर्क एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. और हम यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वॉज एंड वर का यूज करते हैं. We use the past continuous tense to describe an action that was occurring at the certain time in the past. That is, she was driving to work at 8 p.m. 8 a.m. The elevator was not working after 5 p.m. And the second topic is when one action
interrupted another ongoing action. Usually the interrupted action is expressed by the simple past, that is, we were taking when she came in. Mark was washing the dishes when Ellen called. And the third topic is फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेज. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सी आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके जो वर्ब दी गई है उनका यूज़ करके आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ब्लैंक्स को, स्पेस को फिल करना है. जैसे कि देयर वॉज म्यूजिक एंड पीपल डांस इन द स्ट्रीट. तो यहाँ पर क्या है कि कुछ पीपल लोग हैं, तो यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे, जैसे वर्ब डांसिंग. आई जो है यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे. आई वॉज सिटिंग इन माई बेडरूम रीडिंग अ बुक. स्टूडेंट इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा. Third point is future continuous tenses. The future continuous tense tells us about action that will be in progress at some time in the future. Future continuous tense हमें बताते हैं कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव समय में, कुछ आने वाले समय में कंप्लीट होगा फ्यूचर में जाकर. We use will, shall plus be plus present participle to express this tense. इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वी शैल प्लस बी का यूज़ करते हैं. दैट इज इन द इवनिंग आई विल बी बेकिंग अ बर्थडे केक. इन एन आवर और 2 आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली. सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज डी, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है फ्यूचर कंटिन्यूस वर्ब का यूज़ करके. नंबर 1, यू विल बी देयर प्रोग्रेस इफ़ यू हेल्प देम. यहाँ पर विल बी हिंडरिंग आएगा, हिंडरिंग. द पुलिस विल बी रिवीलिंग द नेम्स ऑफ द एक्सक्यूज इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुनाइट. द चिल्ड्रन will be performing a dance drama in front of the large audience. So students, जो आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें आप will shall के साथ be का यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में. ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज डी को भी कंप्लीट करना है. So students, it's enough for today. Goodbye.